called Options Wednesday. And this is your host, Prasenjit Biswas, and I'll be taking you through the today's session, and which is all about dissecting option prices. So, can we just have the slides, please? Right. So, what is it all about today? Basically, today we are going to be discussing about how the option prices behave and how they react to various factors and what are the factors that are involved and how do we really use these options in our day-to-day life and a lot about the pricing things, right? So let's just move ahead and quickly we will do a recap of what we have covered in the previous sessions. So in the previous sessions, we have learned about the types of options, what are call options, put options, and how they behave with respect to the market conditions. So, for example, if I'm a bullish player in the market, then I would go long on the call options, or maybe I can go short on the put options, right? And similarly, the reverse is true for somebody who is bearish in the market. So all these things we have covered in the previous sessions. We have also covered about how options are different from futures, and like in futures the risk is unlimited, the profitability factor is also unlimited. But in case of an option, if you are buying an option, you have a limited downside, limited risk, but then the upside is pretty much open. But in case if you're a call seller or a put seller, like an option writer, then of course your risk is again equivalent to that is there in the future. So all these things have been covered. This one also, like how the spot moves and how the options would move. Uh, like if markets are going up, then the call premium goes up, the put premium comes down, and vice versa. So all these things have been covered. So now for the topic today, what I'll do is I'll keep the medium of delivery in both English and Hindi for the benefit of our audience. Right? So all set? Okay. So firstly, we will start with what is intrinsic value of an option and what is the time value of an option. So right in front of you, you can see that basically there is a stock which is currently quoting at around 498. Okay, so that's the spot price of any XYZ stock, let's say. Right now, you can also see a list of call options and put options with various strike prices across vertically. So now let's consider the case of a particular call option, which is like the 480 call option. And let's say if I am long on that call option. So what does it mean? Being long on the call option of 480 means that it gives me the right to buy the asset at 480 if the prices on expiry would be above 480. So say for example, if market is trading or the stock is trading at 498 currently, and if that's where let's say the expiry happens for the stock, right? So on the day of expiry, I would be holding this call option, and that would give me the right to buy the underlying asset at 480. So what does it mean? It means that something which is quoting at 498, correct? जिसका 498 market price चल रहा है, उसको I will be able to buy at 480. So 480 से 498 is कितना 18 रुपए. So that is the kind of the profit that you will be looking at. But then what happens when you are kind of not on the day of expiry, not at expiry, when you are within the tenure of the contract? So you would have noticed that the option premiums are slightly more, kind of whatever is the differential, whatever is the intrinsic value. So what is intrinsic value? Intrinsic value is nothing but the difference between the strike price or my exercise price with respect to the underlying spot price. So for example, if right now there are, let's say, 7 days to expiry, and this option is 480 option is trading at 23 rupees. So what does it mean? It means that this option has an intrinsic value of 18 rupees and a time value of 5 rupees. Now how are these numbers coming from? So the intrinsic value comes from the fact
of the whatever is the differential, जो आपका करंट मार्केट प्राइस है 498 और जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है 480 का, तो 480 का स्ट्राइक एंड 498, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज 18 रुपीज और यही इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया. Okay, because that's the money that this contract has already acquired in terms of its value, है ना. So 498 तो चल ही रहा है, तो 480 में आपको 18 रुपए तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है ही. बट इसके साथ आप देखिएगा देयर इज अ बिट मोर that is quoting with the option price. Like in this case, it is 23 rupees. So the extra 5 rupees is what we call as the time value, and that can be accounted for because of the market's expectation of how much further this underlying can move, right? So it would depend on how much time is left, and that's what decides the time value of any option. But what about any option, let's say जो 500 का call है, so that call is trading at 9 rupees. As you can see on the right hand side of your screen, there are three vertical bars, the histograms. So you can see that the call option of 500 is quoting at 9 rupees. अब इसमें क्या है, इसमें is there any intrinsic value? No. You think of it? No, there is none, because 500 call gives me the right to buy the stock at 500 only, but right now it is actually quoting 2 rupees lower, correct? So my bet is that the option or the underlying will probably go above 500 during the course of the time, and that's why I am betting for 500 rupees as my base price to be bought, correct? So in this situation there is no intrinsic value because the spot is quoting below my strike price in this case of a call option, correct? So actually यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इसका तो फिर it should be -2, because अगर हम माइनस ही कर रहे हैं हमेशा, so it should be minus, but no, intrinsic value कभी माइनस नहीं होता है, it is only positive or zero, correct? Similarly, the 500 tel call option is trading at 4 rupees, so that's also where there is zero intrinsic value and everything is a time value. So in the histogram that you are seeing on your right, the green color represents the intrinsic value of any option, okay? So it is only in the case of 480 call option, which is trading at 23, we can see an intrinsic value of 18 and a time value of 5. But for the rest of the other two options, which are 500 call and 510 call options, there is no intrinsic value and it is only time value of 9 rupees and 4 rupees respectively. Okay, what about a put option? So now let's flip on the right hand side, which is the put option side. So again, the spot is quoting at 498. So if you take the example of the 510 put option, and that is quoting at 15 rupees. So what does it mean? It means the 510 put option gives me the right to sell at 510. और अभी क्या चल रहा है? अभी 498 चल रहा है. So the difference between 510 and 498 is the acquired value of the contract, which is the again the intrinsic value. So how much is it? It is 12 rupees, correct? But if you see, the option is trading at 15. So the extra 3 rupees can be accounted for the time value in the option. Now, if you look at the middle one, which is the 500 rupees put option, that put option is actually trading at 9 rupees. So यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 500 का put है, which means that this put option gives me the right to sell at 500. Right now it is at 498, मतलब थोड़ा सा नीचे है. So I have the right to sell the option slightly higher, like 2 rupees higher. So this 2 rupees differential is the acquired value of the contract. So again, that 2 rupees in this case will be the intrinsic value. But this option again, like quoting at 9, so the balance 7 rupees is accounted for as the time value in the option, which is the light yellow color, correct? But the 480 strike price, which is quoting at 3 rupees, it is entirely time value. There is no intrinsic value because 498 abhi chal raha hai, and I'm thinking of selling at how much? At 480. So it's way below. So there is no intrinsic value. There is no negative intrinsic value. जैसे कि मैंने बताया, there cannot be a negative value for the intrinsic value. It's zero. But the 3 rupees option can be accounted for the time value. Okay, so this is what basically was all about time value and intrinsic value. Now, what is called moneyness? आपने सुना ही होगा something called in the money option, at the money, out of the money option. तो ये है क्या? साधारण भाषा में it is very simple.
It is nothing but, you can think of it that any option which has a positive intrinsic value will be called as an in the money option, because उसमें in the money है, मतलब there is some inherent value that it has acquired, it is already in profit, already in money, ठीक है ना? So that's why it is called in the money. So what would be the examples of in the money call options? If spot is trading at 498 again, so my in the money call options will be 490, 480, 470 and 460 call options, correct? So all these options which are below the 498, so all these call options which are below, in case of call options, the lower ones are always in the money, correct? So they are my in the money call option. But any call option which is above the current market price, which is like 510, 520, these call options will be called as an out of the money call option. And the reverse is true for the put options. The higher strike prices, like for 540, 530, 20, 510, up to 510, all these strike prices will be termed as an in the money put option, because they have an intrinsic value which is positive. Plus they will also have some time value. But the rest of the put options which are below the 500 level, 490, 480, 470, these all are out of the money put option, because they do not have any intrinsic value. They only have time value. Now, so what we are left out with is the ATM put option, which is called the at the money put option. मतलब जहां पे आपका स्पॉट चल रहा है, उसके जो सबसे नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, both for the call and the put, that's what is known as the ATM call or the ATM put. So in this case, the 500 strike happens to be the ATM strike for both the call and the put. ठीक है? So यहां तक हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ATM, OTM, ITM ये सारे हमने कवर कर लिए. अब आते हैं कि what are the main factors when you think of an option premium? What are the factors that really impact the price of an option? ठीक है? तो एक तो आप बोल सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली स्पॉट, अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल का भाव बढ़ेगा, मार्केट नीचे आया तो कॉल का भाव गिरेगा, एंड रिवर्स ट्रू फॉर द पुट ऑप्शंस. तो ये हम जानते हैं. इसके बाद आप और ये भी बोल सकते हैं कि टाइम टू एक्सपायरी जो है, तो जितना टाइम टू एक्सपायरी हमारा रहता है उसके हिसाब से जो है ना ऑप्शन के प्राइसेस चेंज होते हैं, राइट? सो दोज ऑफ यू हु हैव बीन ट्रेडिंग ऑप्शंस, दे आर I mean completely in agreement to what I said just now. बट इसके अलावा और क्या क्या है? सो खाली हम ये नहीं देखेंगे, इसके आने वाले स्लाइड में हम ये भी देखेंगे कि ये सब सारे कैसे करके इंपैक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फैक्टर्स एक्चुअली इन टोटलिटी क्या क्या है. सो बेसिकली देयर इज अ मॉडल कॉल्ड Black-Scholes मॉडल which is used for option pricing. It is one of the models. So Black-Scholes model में क्या है? It says that there are 6 factors which can influence the price of an option. तो हमने स्पॉट प्राइस हमको मालूम है क्या है, स्ट्राइक प्राइस हमको मालूम है क्या है, करेक्ट, टाइम टू एक्सपायरी, ये तीनों चीज तो हमको मालूम है. अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है रिस्क फ्री रेट और डिविडेंड और वॉलेटिलिटी. तो रिस्क फ्री रेट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है ना, हम बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो वो हम अगर कोई सिक्योर्ड जगह पे रखते हैं, ठीक है ना, सो वहां पे हमको जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न होता है या कुछ रिटर्न आता. सो रिस्क फ्री, जिसमें जीरो रिस्क हो, सो मे बी अ गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक 91-day ट्रेजरी बिल, दैट्स अ बेंचमार्क फॉर अ रिस्क फ्री रेट. सो ये एक हो गया जो इंपैक्ट करता है. दूसरा हो गया डिविडेंड. अगर किसी स्टॉक में अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाली है तो उसके हिसाब से भी जो है ना ऑप्शन के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं. और सिक्स्थ जो फैक्टर है व्हिच इज वॉलेटिलिटी, इट इज, ट्रस्ट मी, वेरी much ignored and probably deserves more attention than it generally people give. So थोड़ा सा जो है ना, बाकी सारे फैक्टर्स तो देखिए समझने के लिए उतना कुछ है नहीं, खाली वॉलेटिलिटी के ऊपर में I would just take 1 or 2 minutes to make you understand what are the types of volatility. तो वॉलेटिलिटी साधारण भाषा में यही है कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट करता है या कोई भी एक स्टॉक कितना फ्लक्चुएट करता है ना. तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको हम हिस्टोरिकल अगर डेटा ले लें और उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल टूल लगाएं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स द मेथड टू मेजर हाउ वोलेटाइल एन एसेट हैज बीन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हम उसका हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी निकाल सकते हैं, कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स किसी का भी, ठीक है ना. और ये जो है ना, ये कोई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, ये है जो रियलिटी में हुआ है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्राइसेस, करेक्ट. सो अब आते हैं ब्लैक-शोल्स पे वापस. सो ये वॉलेटिलिटी तो यहां तक हो गया. अब ये वॉलेटिलिटी में जैसे हमने देखा कि
इसमें ये 6 फैक्टर्स सारे अगर हम ब्लैक शेल्स के मॉडल के अंदर में हम डालें, एक मसाले की तरह, सो द आउटपुट विल बी अ थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, सो क्या क्या फैक्टर वापस से मैं रिपीट करता हूं, स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी पकड़ लीजिए, रिस्क फ्री रेट और डिविडेंड। अभी इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा एक ये भी एक फैक्टर आता है जहां पे हम रिस्क फ्री रेट को हमेशा, मतलब कई बार थोड़ा सा एक्यूरेटली अगर एस्टिमेट नहीं कर पाए, या अगर उसको अभी क्या चल रहा है या उसको कितना लेना है, तो इस पे थोड़ा सा अगर हमको कंफ्यूजन हटाना है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है कि आप इसमें थोड़ा सा जो है ना इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस फॉर्मूला में। तो वो क्या करते हैं कि आप जो है ना स्पॉट के बदले खाली फ्यूचर का भाव आप लेते हैं, बस इतना ही। तो बाकी देखिए, आपने स्ट्राइक प्राइस तो आपको मालूम है कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी टाइम कितना बाकी है एक्सपायरी में, ये भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, कैलेंडर डेज। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो रिस्क फ्री रेट अगर हमने 0 पकड़ लिया और उसके बदले में हमने क्या किया, फ्यूचर ले लिया, तो इंस्टेड ऑफ द स्पॉट प्राइस आई एम टेकिंग द फ्यूचर वैल्यू, एंड दैट अलाउज मी टू असाइन अ 0 वैल्यू टू द रिस्क फ्री रेट। मतलब रिस्क फ्री रेट का हमने झमेला खत्म कर दिया। और बाकी तो देखिए, डिविडेंड अगर है तो है, नहीं अगर है तो 0%, खत्म बात। तो लेट्स से इन केस ऑफ अ निफ्टी ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला लाइन है ना, उसको आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। जैसे मैंने ये 16,000 आई मीन 15,600 का जो कॉल है निफ्टी का, दैट एग्जांपल आई हैव टेकन। ओके, सो 17 तारीख को बेसिकली क्या है कि दिस 15,600 कॉल ऑप्शन ऑफ 30 जून है ना, ये चल रहा था 176 रुपए। अभी ये कैसा है, मतलब चलना चाहिए था 176 रुपए, ये कैसे करके हमको मिल रहा है? अगर हमने फ्यूचर का भाव डाला 15,638, मतलब 15,638 was the future value. I am taking a call option of 15,600. There were 9 days left to expiry, and the historical volatility is 16%. That's what I got. Okay, and risk-free rate 0, dividend 0. So this inputs when fed into the Black-Scholes model gives me a price of 176 as the theoretical value of the 15,600 call option of 30th June. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि मार्केट में जो है ना एक्चुअल प्राइस जो है वो 220 चल रहा था। तो अभी आप इस एनोमली को आप कैसे करके एक्सप्लेन करेंगे? ये जो डिफरेंस है कि आपके मॉडल में आपने देखिए, आपने फ्यूचर का क्या भाव चल रहा है आपके सामने में है, 15,600 का कॉल ऑप्शन आपने लिया, इसमें कोई डिबेट नहीं है, 9 दिन बाकी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गणित है। बाकी रिस्क फ्री रेट और डिविडेंड 0 होना, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बचा क्या? बचा एकमात्र हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। मतलब जो 16% मैंने यहाँ पे डाला है, उसी फिगर में हो सकता है कि शायद कुछ ना कुछ है जिसके वजह से जो मार्केट में 220 रुपए का चल रहा था कॉल ऑप्शन, वो हमको थियोरेटिकली 176 मिल रहा है, मतलब काफी कम मिल रहा है। करेक्ट? सो प्रॉब्ली अगर हम उस चीज को थोड़ा सा चेंज करें और हम इस तरीके से सोचें कि मार्केट में जो है ना वो 16% का जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया 16% हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है, प्रॉब्ली मार्केट उस वॉलेटिलिटी नंबर के साथ में अभी काम नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकली जितना मार्केट रहा है वॉलेटाइल एक साल या जो भी, सो एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी 16% है। अभी मार्केट जो है ना उससे ज्यादा या कम एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ तो डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही है। इसी वजह से आपका जो 176 रुपए आ रहा है और मार्केट में सामने में जो 220 रुपए चल रहा है, ये डिफरेंस है। सो अगर हम उल्टा कैलकुलेट करें इस तरीके से कि वो कौन सा वॉलेटिलिटी का नंबर होना चाहिए, देखिए 16 तो नहीं है, 16 होगा तो 176 रुपए आएगा, जो कि गलत है। मतलब गलत मतलब मार्केट में कुछ और ही चल रहा है। सो व्हाट दैट मैजिक नंबर इज, which when fed into the Black-Scholes model of volatility will give me 220 as the answer price। ठीक है ना? तो ये बैक कैलकुलेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक वॉलेटिलिटी निकालते हो। अब इस वॉलेटिलिटी को हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है नहीं। देखिए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को एक्चुअली इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोला जाता है, जो कि हम कई बार शॉर्ट में आईवी बोलते हैं, आईवी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, सो नेट नेट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब यही है कि ब्लैक-शॉल्स मॉडल के अंदर में हमको वो कौन सा वॉलेटिलिटी नंबर है जो हम यदि डालें तो हमको जो करंट मार्केट प्राइस है वो मिल जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी डालने से हमको शायद थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस मिलेगा।
सो ये मैं आपको आगे के लिए जो है ना, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या नंबर होने से 220 रुपए आता, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 16 डाला था तो द प्राइस वाज कमिंग एज 176, बट द एक्चुअल मार्केट प्राइस वाज 220. सो दिस इज व्हाट you have to figure out to find out what was the right implied volatility. ठीक है ना? So you can post your answers in the comment section. I'll be happy to have a look at them. ठीक है? So ये भी हमने implied volatility समझ लिया. अभी इसमें एक छोटी सी बात है कि देखिए implied volatility का ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं होता है. ये जो है ना, ये आपको ट्रायल एंड एरर के थ्रू निकालना होता है. मतलब क्या कि आप उस इक्वेशन में जो है ना, एक एक करके आप इनपुट डालेंगे वॉलेटिलिटी का. 16% नहीं है तो आपने 17 ट्राई किया, आपने 14 ट्राई किया, और आपने 18 ट्राई किया. ऐसे ऐसे करके यू आर ट्राइंग आउट वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड देन यू विल इवेंचुअली हिट द राइट नंबर. करेक्ट? सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द वॉलेटिलिटी एंड दैट्स कॉल्ड द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. सो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही निकलता है. सो कमिंग बैक टू दिस ब्लैक-शोल्स मॉडल, हमने ये तो समझ लिया कि देखिए स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी, ये सारी चीजें एक ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं. बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है. दिस इज वेयर नॉट द स्टोरी एंड्स. करेक्ट? वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ these prices are impacted. We need a mechanism to measure these factors. करेक्ट? इनको एक कुछ होना चाहिए ना नंबर, जिसके थ्रू, जिसको देख के हम समझ सके कि हाँ ये इतना है तो ये इसका मतलब ये हो रहा है, इतना मूवमेंट आएगा. सो देयर हैज टू बी अ वे ऑफ मैकेनिज्म. और एक्चुअली जो है ना, ये सारे फैक्टर्स को एक अलग अलग नंबर से हम मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है ग्रीक्स. ठीक है? सो ये सारे फैक्टर में सबसे पहले हम लेते हैं डेल्टा. सो डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब यही है कि स्पॉट में कितना मूवमेंट आने से मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना हिलेगा. सो डेल्टा इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स. ठीक है ना? तो डेल्टा का वैल्यू जो है वो +1 से लेके -1 तक वैरी करता है. अब मान लीजिए किसी ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.7 हो, ठीक है ना, 0.7, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अगर 1 पॉइंट बढ़ा, मतलब निफ्टी अगर मान लीजिए 1 पॉइंट बढ़ा, तो मेरा ये ऑप्शन का भाव कितना चेंज होगा. अगर 0.7 है तो मतलब 70 पैसा बढ़ेगा. तो रफली समझने के लिए अगर मान लीजिए निफ्टी अगर 10 पॉइंट बढ़ गया तो आपका जो ऑप्शन है वो 10 रुपए बढ़ जाएगा, आई मीन 7 रुपए बढ़ जाएगा, है ना. 0.7 है तो 7 रुपए. अच्छा, थीटा. थीटा मतलब क्या है? टाइम. जैसे टी एज इन टाइम, सो थीटा में टी, सो याद रखने के लिए जस्ट. सो थीटा मेजर करता है कि सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टाइम, मतलब एक दिन अगर एक्सपायरी में कम हो तो मेरे ऑप्शन के प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा. नाउ थीटा नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे आपका टाइम टू एक्सपायरी पास आता है, मतलब जितना आपका टेनर कम होता जाता है ना, वैसे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते जाते हैं. करेक्ट? तो इसके लिए थीटा हमेशा नेगेटिव होता है. राइट? सो थीटा एसेंशियली मेजर्स how much my option will go down if the time to expiry reduces by 1 day. ये हो गया थीटा. अच्छा, वॉलेटिलिटी. तो वॉलेटिलिटी के लिए जो ग्रीक यूज होता है उसको हम बोलते हैं वीगा. सो वी फॉर वीगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, वी फॉर वीगा. सो अगेन वीगा ये मेजर करता है कि इफ देयर इज 1% चेंज इन वॉलेटिलिटी, ठीक है ना, सो मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज हो जाएगा. जैसे हमने देखा कि वहां पे 16% पे तो हमारा 176 का आंसर आ रहा था, जो कि एक्चुअल मार्केट से काफी डिफरेंट था, which was not the real price of the option. So Vega में it actually measures the sensitivity of the option towards the change in volatility. तो अगर मान लीजिए मैंने उसको 17 कर दिया 16 का, तो मेरा ऑप्शन प्राइस कितना चेंज हो जाएगा. सो ये जो है ना, ये वीगा से पता चलता है. तो अब हर जो ऑप्शन है ना, हर स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स और पुट, सारे के जो ये ग्रीक्स हैं, चाहे डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो, जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे जो है ना अलग अलग होते हैं. तो ये कैसा है कि ये मतलब थोड़ा सा 3 डायमेंशनल एक वेरिएबल्स होते हैं जिसमें, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं. पहला क्या हो गया कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, ठीक है ना, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले रहे हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, और कितना आउट ऑफ द मनी, है ना. सो कॉल या पुट. वैसे दूसरा फैक्टर हो जाता है कि कितने टाइम टू एक्सपायरी, मतलब टाइम अभी कितना बाकी है बिफोर एक्सपायरी. तीसरा फैक्टर हो जाता है कि आपका जो अभी करंट मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है एक्चुअली, वो क्या चल रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली डिसाइड व्हाट विल बी द ग्रीक्स ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस. सो गामा थोड़ा सा हल्के से बता दूं, जनरली आपको उतना मतलब
अगर आप एडवांस ऑप्शन ट्रेडर नहीं है तो जनरली ये बेसिक लेवल पे अभी हम समझ लेते हैं। सो गामा क्या है ना, गामा आपका डेल्टा का सेंसिटिविटी मेजर करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑप्शन का स्पॉट चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर आया तो वो इन द मनी हो गया है ना, तो वैसे वैसे आपका डेल्टा भी उस ऑप्शन का चेंज हो जाएगा। सो गामा मेजर करता है कि आपके ऑप्शन मतलब जो डेल्टा है वो डेल्टा क्या रेट से चेंज होता है अगर स्पॉट 1 पॉइंट बढ़े तो, ठीक है। और रो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंजेस आए तो आपका ऑप्शन का कितना प्रीमियम में चेंज आएगा। सो दैट्स बेसिकली नॉट रिलेवेंट इन केस ऑफ इंडिसेस, क्योंकि मतलब अभी हम फ्यूचर के लेके डील करते हैं तो वैसे है ना। तो आइए हम समझते हैं आगे थोड़ा सा लाइव एग्जांपल लेके। तो ये जो था यहाँ तक हमने थ्योरी थोड़ा सा कवर कर लिया, अभी हम चलेंगे थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के लिए, है ना। सो मेरे को जस्ट थोड़ा सा स्विच करना होगा, आई विल जस्ट स्विच ऑन टू एन एक्सेल फाइल। मैं जस्ट थोड़ा सा उसको ओपन कर लूं, जस्ट वन मोमेंट। Yes, it is getting loaded. Yes, I think you are able to see the Excel sheet, है ना। गुड। सो ये एक एक्सेल शीट है जिसमें हम क्या है ना, सिंपल हम सारे ऑप्शंस के जो है ना ग्रीक्स उनको हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेल्टा को। सो दिस आई हैव वेरियस शीट्स, ये डेल्टा थीटा गामा वी का ऐसे ऐसे करके अलग अलग शीट्स हैं ना। तो सबसे पहले हम डेल्टा को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक ऑप्शन का तीन चीज डिसाइड करता है उसका ग्रीक। तो अगर डेल्टा के केस में भी वही एप्लीकेबल है। तो तीन चीजों में से सबसे पहला हो गया ये टाइम टू एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो है ना टाइम टू एक्सपायरी मैंने ये ऐसे मान लीजिए, ये कॉल के केस में ये अपना यहाँ पे ये दिस इज द कॉल सेक्शन। सो दिस 30 हियर मींस दैट 30 डेज तो अभी एक्सपायरी में बाकी है, और जैसे जैसे करके एक्सपायरी पास आता जाएगा वैसे वैसे करके हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज हो गया हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे आई हैव अ लिस्ट ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस बिटवीन 14,800 एंड 15,800, और ये सारे कॉल के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे सारे पैरामीटर, अब ये जो एक मैट्रिक्स बन गया है, इसके बेसिस पे हमको जो है ना एक थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं एक मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक ग्रिड मिल जाएगा जहां पे हम हर ऑप्शन का डेल्टा इजीली हम देख सकते हैं। सो आइए हम इसको लाइव एक बार चलाते हैं। सो आई एम टेकिंग द फ्यूचर प्राइस 15,300, है ना। ओके, देखिए तो ये आपके सामने में जो है ना ये सारा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का और अलग अलग टाइम टू एक्सपायरी पे, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिस इज 13 डेज टू एक्सपायरी, दिस इज 9 डेज टू एक्सपायरी। सो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे अलग अलग स्ट्राइक डेज टू एक्सपायरी पे आपका डेल्टा का सारा नंबर पॉपुलेट हो गया। तो एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस वन, है ना। 15,100 का कॉल, 13 दिन बाकी है मान लीजिए एक्सपायरी में, ठीक है ना। सो आई एम लुकिंग एट दिस 13 डेज टू एक्सपायरी रो एंड आई एम लुकिंग एट 15,100 का कॉल ऑप्शन का कॉलम, ठीक है। और हम वॉलेटिलिटी जो है 23% के साथ एक बार हम देखते हैं। तो इसमें क्या नंबर हमको दिखा रहा है, इसमें हमको दिखा रहा है 0.68। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 15,300 चल रहा है, मार्केट अभी कितना चल रहा है देखिए, फ्यूचर 15,300 चल रहा है ना। तो हम बात कर रहे हैं एक इन द मनी कॉल ऑप्शन की जो कि 15,100 का है, लेकिन उसमें अभी कितने दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है। तो इसका अगर 0.63 चल रहा है, माफ कीजिए मैंने गलत ये किया था, तो the value of the 15,100 call option delta for 13 days to expiry is 0.63। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 10 पॉइंट बढ़े तो आपका ये जो कॉल ऑप्शन है ना, इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय मोर और लेस 6 पॉइंट्स। अगर बाजार 10 पॉइंट बढ़ा तो ये 6 रुपए बढ़ेगा। साधारण भाषा में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात, कि जैसे जैसे आपका मान लेते हैं कि बाजार यहीं पे खड़ा है, वी आर नॉट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द फ्यूचर, तो बाजार मान लीजिए यहां पे खड़ा है।
अब हर दिन एक एक दिन करके हम आगे बढ़े हैं, तो ये 13 दिन पे इसका 0.63 आ गया। उसके बाद 12 दिन में 0.63, फिर धीरे 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 करके देखिए ये डेल्टा जो है ना ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जैसे अभी आप 5 दिन बाकी है तो 0.63 से आप 0.69 पे आ गए, एंड ऑन द लाइक व्हेन देयर इज ओनली वन डे यू सी दैट इट इज एट 0.86, मतलब पहले जहाँ पे 6 रुपए बढ़ा था अभी करीब 8.5 या 9 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है ना। सो बाजार 10 पॉइंट बढ़ा तो ये 9 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 हो रहा है या ऑलमोस्ट 1 के पास हो रहा है। और एक्चुअली थोड़ा सा अगर हम और डीप इन द मनी जाए तो ये तो पूरा 1 ही है, एग्जैक्ट 1 है ना। दिस बॉक्स 14,800 वाला कॉल ऑप्शन ये, एंड ऑन दिस डे। सो इसका मतलब ये है कि बाजार के साथ में ये 1:1 रिएक्ट करने वाला है। बाजार अगर 10 पॉइंट बढ़े तो ये 10 रुपए बढ़ेगा इस ऑप्शन का भाव, और 10 पॉइंट बाजार गिरे तो ये 10 रुपए ऑप्शन का भाव गिरेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक चीज ये है कि जो इन द मनी ऑप्शंस हैं उनका जो डेल्टा है ना वो 0.5 से ज्यादा है। मतलब इन द मनी जो हमारा कॉल ऑप्शन हो गया वो हो गया सीधा यहां से, ये 15,200 से है ना, 15,300 मार्केट चल रहा है। सो 15,200 से ये सारा हमारा इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, और जितना डीप इन द मनी वो उतना 1 के पास। अच्छा, सिमिलरली जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है ये 15,300 के ऊपर, इनका जो डेल्टा है दे आर लेस देन 0.5, है ना। जितना दूर उतना वो जीरो के करीब। और जो एट द मनी ऑप्शन है ये देखिए ये 0.5 या 0.5 टू 0.51 ऐसा ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टू एक्सपायरी। चाहे आप 30 दिन जब पहले यहाँ पे आप देखिए ये कॉल ऑप्शन जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है जो कि 15,300 वाला होगा, है ना। सो हम इस कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सो जब 30 दिन बाकी था यहाँ पे अगर आप देखें, सो यहाँ पे भी इसका डेल्टा 0.51 था, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आता गया इट स्टिल एट 0.5। तो इसका मतलब ये है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी जो एट द मनी ऑप्शन है ना उसका डेल्टा हमेशा 0.5 होता है। मतलब बाजार 10 पॉइंट बढ़े तो ये 10 पॉइंट बढ़ेगा, 10 पॉइंट गिरे तो ये 10 पॉइंट गिरेगा इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। अभी एक बार जो है ना मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाता हूँ, इसको ग्राफिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा सा शायद और क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आपके सामने में जो है ना देयर इज अ ब्लू लाइन दैट यू कैन सी, करेक्ट। ये जो लाइन है ये एक्चुअली कौन से रो को डिस्प्ले कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है 30 डेज टू एक्सपायरी। ये वाला 30 डेज टू एक्सपायरी जब आपका था तब आपका अक्रॉस द स्ट्राइक प्राइस हर एक का क्या क्या डेल्टा था। जैसे 14,800 का था 0.7, और वहीं पे 15,800 का था 0.32, एंड एटीएम एज आई सेड जो 15,300 वाला वो 0.5। तो ये जो सारे नंबर है ना इसी को ग्राफिकली यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। इसमें आप देखिए एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें जो लाइन है ना ये मतलब ना तो जैसे क्या है कि एग्जैक्टली जीरो है, जितना भी आप बाहर जाएंगे चाहे आप अगर 15,800 से और अगर ऊपर चले गए 16,000 16,200 तो ये एग्जैक्टली जो है ना जीरो के पास तो जाएगा बट एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा, है ना, कुछ शायद रहेगा। सिमिलरली ये जो 14,800 का कॉल ऑप्शन है इट इज एट 0.7, मतलब ये लाइन जो है ना ये थोड़ा यूनिफॉर्मली है इसका डेल्टा का वैल्यू। अब अगर हम इसमें एक और चीज अगर प्लॉट करें विच इज दी 1 डे टू एक्सपायरी के टाइम पे जो डेल्टा होता है ये वाला लाइन, ये देखिए ये कर्वेचर है, ये लीनियर नहीं है, ये इसमें थोड़ा कर्व आ गया जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। तो ये लाइट ब्लू कलर का लाइन देखिए इसमें नोटिस कीजिए कि ये कौन सा लाइन है, वापस से मैं बता दूं। This line, the light blue colored line is the line when there is only 1 day to expiry, ठीक है। तो टाइम हमने भर लिया, ये वाला पहला रो का हम बात कर रहे हैं, दिस रो है ना, दिस रो इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे देखिए इसका डेल्टा क्या है, जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है उनका डेल्टा 1 के पास है या ऑलमोस्ट 1 है। हालांकि जब 30 डेज टू एक्सपायरी था इट वाज नॉट द केस। सो यही जो 14,800 का कॉल ऑप्शन है जब 30 दिन बाकी थे तो इसका डेल्टा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डेल्टा 0.7 के पास था, और यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 1। सिमिलरली जो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक ऑप्शन था 15,800 वो एक्सपायरी के टाइम मतलब 30 दिन पहले जो है उसका डेल्टा था 0.32, और एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑलमोस्ट हो गया 0। इसका मतलब क्या है, मतलब यही है
कि एक्चुअली जो डेल्टा है ना, इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बिकमिंग इन द मनी ऑन एक्सपायरी। तो आज अगर मान लीजिए 30 दिन बाकी है, तो जब हम 14,800 का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं और बाजार कितना चल रहा है, बाजार चल रहा है 15,300, मतलब 500 पॉइंट इन द मनी हम देख रहे हैं, है ना। 15,300 पे 14,800 इज 500 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन। तो जब टाइम टू एक्सपायरी बाकी है ना बहुत, तो वहां पे आपका इसका डेल्टा देखिए, ये नीचे में वापस से लेके जा रहा हूं, ये 0.7 के पास था इधर। तो ये 1 क्यों नहीं है? 1 इसलिए नहीं है क्योंकि आप 100% नहीं बोल सकते हो कि बाजार अगले 30 दिन में जो है 500 पॉइंट नहीं गिर जाएगा और ये इन द मनी एक्सपायर होगा, क्योंकि 30 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए फिर भी इसका प्रोबेबिलिटी जो है 70% है, 100% नहीं है। बट जैसे जैसे एक्सपायरी आपका नजदीक आ गया, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी वाइज आपका जो है ना, ये ऑलमोस्ट 1 के पास पहुंच जा रहा है, मतलब 100% के पास पहुंच जा रहा है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगा। क्योंकि अब एक दिन बाकी है, तो 14,800 का कॉल ऑप्शन है, 15,300 चल रहा है। अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल एक्सपायर इन द मनी ओनली, है ना, इन द मनी ही बंद होगा। तो इस वजह से इसका जो डेल्टा है ये 1 के करीब है। अब आते हैं थोड़ा पुट के केस में। तो पुट के केस में अगर आप देखें, एक और मैं बीच में दिखा दूं, ये 13 डेज टू एक्सपायरी, ये हमने ले लिया, ये जो ग्रीन वाला लाइन आपने देखा, सो दिस ग्रीन लाइन इज 13 डेज टू एक्सपायरी। तो जैसे जैसे ये एक्सपायरी आपका नजदीक आता जाता है ना, तो ये आपका लाइन ऐसे है, 30 डेज टू एक्सपायरी पे ये फ्लैट था, करेक्ट। और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है, तो जो इन द मनी है उसका डेल्टा 1 के तरफ पहुंच जाता है, और जो आउट ऑफ द मनी है उसका डेल्टा 0 के तरफ जाना चालू करता है। बस आप इतना ही समझिए, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस लाइट ब्लू कर्व लाइन, है ना। अभी पुट ऑप्शन के केस में भी क्विकली अगर हम देखें, तो देखिए दिस इज अगेन 1 डे टू एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन का है। तो जो इन द मनी पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा क्या होगा, उसका डेल्टा -1 के पास होगा। सो इन द मनी पुट ऑप्शन कौन सा होगा? इन द मनी पुट ऑप्शन के केस में 15,800 विल बी द इन द मनी पुट ऑप्शन। तो आइए हम देखते हैं ये पुट ऑप्शन के केस में। सो जब 30 दिन बाकी है, तो ये इन द मनी जो पुट ऑप्शन 15,800 का हम बोल रहे हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट दिस रो नाउ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे, है ना। सो दिस इज अराउंड 0.68, 15,800, 100% नहीं है, क्योंकि बाजार है, 30 दिन बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इन द मनी एक्सपायर होने का प्रोबेबिलिटी खाली 70% है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझे कि अगर बाजार 10 पॉइंट गिरा, तो ये ऑप्शन उल्टा, रिवर्स, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग रिवर्स कोरिलेशन। सो बाजार अगर 10 पॉइंट गिरा, तो ये ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा? 7 पॉइंट। बाजार अगर 10 पॉइंट बढ़ गया, तो ये ऑप्शन 7 रुपए डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है ना। और वहीं पे जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन जो कि 14,800 का होगा, वो हो गया आपका 0.3 के हिसाब से, -0.3 के हिसाब से। मतलब बाजार 10 पॉइंट बढ़े तो 3 रुपए गिरेगा, बाजार 10 पॉइंट गिरे तो ये 3 रुपए ऑप्शन बढ़ जाएगा। और जस्ट लाइक कॉल ऑप्शन का जो एटीएम जो हमने देखा था, ये एटीएम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के केस में भी इनका डेल्टा 0.5 के पास ही होता है, ये 0.49। और देखिए ये थ्रू आउट द एक्सपायरी जो है ना, ये चेंज नहीं होता है। ये जैसे जैसे करके एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, इट स्टिल रिमेन्स अराउंड 5.5 ओनली, है ना। मतलब क्या है कि ये 50-50 एटीएम है ना, तो ये इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकता है, तो इसके लिए 50-50 है। तो सीधी बात है, इसके लिए इनका डेल्टा 0.5 होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स दी एक्सपेक्टेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट एक क्लास दिखा दूं। सो दिस अगेन द स्ट्रेट रेड लाइन इज दी, ये जो है, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द डेल्टा ऑफ द पुट ऑप्शंस व्हेन देयर वाज 30 डेज टू एक्सपायरी, ठीक है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, ये हम 23% के वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम चल रहे थे। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट में अचानक से बढ़ जाए, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, है ना, 50, 60, 70, पता नहीं कितना, 100, आई थिंक 100% तक पहुंच गया था आईवी, आई डोंट रिमेंबर। बट लेट्स से एक बार हम 50% का आईवी पकड़ लेते हैं। अब जो है ना, हम इस चीज को वापस से रन करेंगे। आप जो है खाली इसको वापस से थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर में ध्यान रखिए, ठीक है। तो वापस से 15,300 इज अगेन माय फ्यूचर प्राइस। देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया, ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन है, मतलब विच आर द लॉन्ग टर्म लाइंस, द
द 30-day एक्सपायरी एंड द 15-day एक्सपायरी, ये थोड़े से और ज्यादा फ्लैट हो गए। और ये जो 1 डे वाला लाइन था, जो एक दिन पहले का जो डेल्टा का लाइन होता है, वो पहले जितना ना ज्यादा कर्वी था वो भी फ्लैटिश हो गया। अब इसको अगर हम और थोड़ा बढ़ा दें, एक बार हम अगर 75% करके देखते हैं क्या होता है, तो देखिएगा ये और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेट हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि आप मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप एक दिन पहले भी नहीं बोल सकते हो कि बाजार 15,300 चल रहा है तो 14,800 का जो कॉल है ना वो इन द मनी एक्सपायर होगा। ये 14,800 का कॉल, इसका डेल्टा भी 0.8 बता रहा है। पहले कितना बता रहा था? पहले 1 ही बता रहा था, लेकिन ये अभी कितना बता रहा है? 0.18 है ना। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, आई थिंक हाँ, एक मिनट जस्ट, अभी आप लोगों को थोड़ा सा शायद बेटर दिख रहा होगा। देखिए अभी यहाँ पे 0.8 आ गया, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। 14,800 और 1 डे टू एक्सपायरी। पहले याद है ये 1 हुआ करता था जब नॉर्मल वॉलेटिलिटी मतलब 20-22 ऐसा था ना, 23% का मैंने एग्जांपल लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि एक दिन पहले भी आप ये गारंटी के साथ में नहीं बोल सकते कि ये इन द मनी एक्सपायर हो जाएगा। और वहीं पे सिमिलरली जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जो 15,800 का जो कॉल ऑप्शन था, उसका भी डेल्टा 0 था, अभी 0.2 आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी में भी सेंसिटिविटी भी होगी। और ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि हाँ, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है, तो 15,300 चल रहा है, तो 15,800 तक जाने में कितना 2 घंटे का बात है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए उस ऑप्शन में भी मूवमेंट होगी, वहां पे भी जो है ना बाजार 10 पॉइंट बढ़ा तो वो भी ऑप्शन 2 रुपए में रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। अब सीधा जो है ना वॉलेटिलिटी एकदम हम कम कर देते हैं, 5% पे लेके आते हैं। अब देखते क्या होता है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं हल्का सा, ठीक है ना जी। अब इसको 5% कर दिया। अगेन विथ वॉलेटिलिटी लेवल ऑफ 5% वी आर गोइंग टू रन द डेल्टा। मेरा मार्केट वापस से 15,300। अब देखिए ये ग्राफ जो है ना पूरा सारा कर्व हो गया, मतलब जितना ज्यादा कर्व, उसका मतलब यही है कि जो ऑप्शन इन द मनी है वो इन द मनी रहने का ही ज्यादा चांस है, और जो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है वो आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर होगा। क्योंकि वॉलेटिलिटी ही नहीं है, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, है ना। सिंपल सा है ना कॉन्सेप्ट कि अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो सारे ऑप्शन के जो डेल्टा है ना वो 0.5 या 0.67 या मतलब 0.3 और 0.7 के बीच ही रहेंगे, चाहे कितना भी एक्सपायरी चेंज हो जाए। और अगर टाइम टू एक्सपायरी बहुत ज्यादा हो तब तो वो पूरा 0.5 ही होगा। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाए तो हर ऑप्शन का जो है ना जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बिकमिंग इन द मनी और आउट ऑफ द मनी वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है। मतलब जो इन द मनी है वो इन द मनी ही एक्सपायर होने वाला है, जो आउट ऑफ द मनी है वो बेचारा आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर होगा। तो इसके लिए उनमें हम कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में मूवमेंट ही नहीं है, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द लो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ 5%। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डेल्टा। ये एक जो क्या है कि ये थोड़ा सा एक रफ आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आपको जो है ना ओवरऑल एक आइडिया लग जाए जनरली कैसे करके एक एक प्रोफाइल होता है। आप चाहे तो बाद में इसको देख सकते हैं वीडियो को, आपको शायद वापस से दोबारा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, अब आते हैं थीटा पे। ठीक है, तो मैं आप ही के सामने एक बार वापस से जो है ना इसको पॉपुलेट कर रहा हूँ। थीटा क्या है? थीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन टुवर्ड्स टाइम। मतलब एक दिन अगर टाइम टू एक्सपायरी मेरा कम हो जाए तो मेरा ऑप्शन में कितना फर्क आएगा। तो अगेन हम ये 23% की जो वॉलेटिलिटी लेवल है उसी से हम काम करेंगे। ठीक है, ये 23% मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब जो है ना वापस से 15,300 का ये लेवल मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा एक थीटा का प्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इसमें आते हैं जो सबसे दूर वाला है। ठीक है ना, सबसे दूर वाला मैं जस्ट उसी को रख रहा हूँ आपके सामने में। ये रहा आपका सबसे दूर वाला। सबसे दूर वाला जो है ना ये ब्लू लाइन है, जो डार्क ब्लू है ना, दिस इज द फारदेस्ट, मतलब 30 दिन जहां पे बाकी है उसका थीटा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। तो एक बार जो है ना ये एक्सेल में हम एक्चुअली आके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इस रो की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना थीटा वैल्यूज कुछ 6 रुपए 5 रुपए ऐसे ही है ना। एंड एवरीथिंग इज लाइक माइनस। मतलब ये है कि अगर एक दिन मेरा टाइम टू एक्सपायरी में कम हो तो ऑप्शन का भाव जो है 5-6 रुपए गिरेगा। ठीक है, और वहीं पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक्सपायरी में, तो आप देखिए इसका जो एक्चुअली डिटोरिएशन का जो रेट है
ये थोड़ा सा स्क्यूड है, थोड़ा सा अलग टाइप का है एकदम से लास्ट में, क्योंकि उसमें वैल्यू होगी नहीं तो उसमें कुछ डिटोरेट होगा नहीं। और खासकर ये जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, आई मीन जो इन द मनी ऑप्शन है या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट में कोई फर्क नहीं होता है। अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी है, दोनों केस में आपका जो थीटा का इम्पैक्ट है वो टाइम के साथ एक्सपायरी के पास कम होता जाता है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इन द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें थीटा का इम्पैक्ट जो है ना, जितना आप एक्सपायरी के नजदीक आएंगे उतना कम होगा, जितना दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा होगा। कॉमन सेंस, क्यों? क्योंकि जितना टाइम बाकी है उसमें उतना थीटा वैल्यू होगा, उसमें उतना टाइम वैल्यू होगा उस ऑप्शन में। अच्छा, जितना पास आएंगे उसमें उसमें टाइम वैल्यू होगी ही नहीं। जो इन द मनी ऑप्शन है वो सीधा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड करेगा, करेक्ट। और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसमें बहुत मामूली सा टाइम वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत मामूली सा होगा। या आप वैसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं है, टाइम ही बाकी नहीं है, तो इस वजह से उसका जो थीटा का वैल्यू है ये दोनों एंड पे देखिए बहुत कम है ना, ये एंड और ये एंड पे। सबसे ज्यादा होता है एट द मनी ऑप्शन और बिफोर एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो है ना थीटा आपका बहुत रैपिडली गिरता है। तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक्सपायरी के एकदम इमीडिएटली जो है ना आपका ऑप्शन बहुत फास्ट जो है मतलब गिरना चालू हो जाता है, चाहे कॉल हो या पुट हो, जो एटीएम ऑप्शन है। सो दैट्स वेयर एवरीथिंग इज एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि मार्केट में अगर मूवमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ अगर हुआ ना तो वो एटीएम ऑप्शन फटाफट फटाफट जैसे आधा होते जाता है एक एक दिन में, करेक्ट। सो ये चीज है। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा वीगा के ऊपर। सो ये क्या है, ये अगेन वॉलेटिलिटी, राइट। सो वॉलेटिलिटी में भी देखिए अगेन वी आर वर्किंग विद 23% वॉलेटिलिटी। सो इसमें लेट्स टेक एनी रैंडम एग्जांपल, है ना। सो अगेन आई एम पिकिंग दिस 13 डेज टू एक्सपायरी और 15,300 का मेरा अगर कॉल हो या पुट हो, तो दोनों के केस में इनका एक ही नंबर होता है, ठीक है। सो 15,300 का जो ऑप्शन है चाहे कॉल हो या पुट हो, 13 डेज टू एक्सपायरी में एट 23% वॉल इट सेज 11, मतलब क्या है कि 11 रुपए। तो अगर 1% वॉलेटिलिटी में चेंज हो तो आपका जो ऑप्शन है वो 11 रुपए, 11.5 रुपए से इंपैक्टेड होगा, ठीक है। अच्छा, जब 9 दिन बाकी थे, 9 दिन जब बाकी थे तब ये लगभग 9.5 या 10 रुपए आप मान के चलो, ठीक है। जब 23% वॉलेटिलिटी हो तो अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी को मान लीजिए हम 5% कर देते, मतलब वॉलेटिलिटी लेवल जो है ना बहुत कम होगा। देखिए फिर भी जो है ना ये आपका कुछ खास चेंज नहीं हुआ अंदर वाला, मतलब जो एटीएम वाला है। जो चेंज हुआ वो है बाहर में, करेक्ट। बाहर के जो स्ट्राइक प्राइसेस है, मतलब जो आउट ऑफ द मनी या इन द मनी हो गए, उनका जो दिस थिंग व्हाट यू कॉल, जो वॉलेटिलिटी है, सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी, वो टाइम टू एक्सपायरी के पास एकदम ही कम हो गया। वापस से हम आ जाते हैं एक नॉर्मल लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी, मान लेते हैं कि 20, ठीक है। तो 20 पे वापस से हम अगर रन करें तो देखिए यहाँ पे कैसा है कि जितना आप पास हैं उसमें आपके वॉलेटिलिटी के जो नंबर्स है ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये वाला सेक्शन में। लेकिन अगर आप नीचे आ जाएं जहाँ पे टाइम टू एक्सपायरी आपका काफी बाकी है, तो देखिए यहाँ पे सारे वॉलेटिलिटी के नंबर्स जो है ना सारे बड़े बड़े हैं, चाहे इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, है ना। सो obviously the ATM option has the highest volatility and highest as the time is higher। तो जितना ज्यादा टाइम उतना हमको ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए हम ये तीनों को जो है ना एक रफली हमको शायद आइडिया मिल गया होगा अब तक। अब हम क्विकली एक एग्जांपल पे आ जाते हैं कि हम ये ग्रीस को यूज करके हम कैसे करके जो है हमारे रेगुलर उस पे हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 एग्जांपल्स। सो बाजार जो है ना 17 तारीख को हम उसका एक्चुअल डेटा ले रहे हैं। तो 17 तारीख को जो है 15,300 का कॉल ऑप्शन ऑफ 30 जून, ठीक है, वो आपका चल रहा था 277, राइट। अच्छा, उस टाइम पे फ्यूचर का भाव था 15,320 उस दिन की क्लोजिंग, राइट। अभी क्या हुआ कि उसके बाद जो है ना 21 तारीख को, मतलब yesterday the markets went to 15,630 and
द ऑप्शन went to 419। अच्छा, 17 तारीख को आपका टाइम टू एक्सपायरी कितना दिन बाकी था? 13 दिन। 21 तारीख को आपके बचे कितने? 9 दिन। ठीक है ना? और वहां पे जो था 17 तारीख को इसी ऑप्शन का मतलब कौन सा 15,300 का जो कॉल ऑप्शन है, इसका वॉल मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 23% के करीब चल रहा था, और जो कि कल भी लगभग वही था। ठीक है। सो अभी देखिए, अभी इसको हम जो है ना, इसको हम एक थोड़ा सा फैक्टर वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज आया। तो देखिए, स्पॉट मतलब ये फ्यूचर का वैल्यू आपका कितना बढ़ा? 15,320 से 630, मतलब कितने पॉइंट बढ़ गए? 310 पॉइंट। करेक्ट। टाइम टू एक्सपायरी आपका 4 दिन कम हो गया, और आईवी जो है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है, वो लगभग जहां पे था वहीं पे है। ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ ग्रीक्स लेट्स अंडरस्टैंड कि इनका इंपैक्ट कैसे आया और ये क्या था। तो देखिए, जब 15,300 मार्केट चल रहा था, ये 15,300, तो ये 15,300 का कॉल ऑप्शन, इसका डेल्टा कितना था? 0.5। कैसे हम बता रहे हैं? ये एटीएम ऑप्शन, जब आप यहाँ पे 13 डेज टू एक्सपायरी, देखिए यहाँ पे हम कितने थे? 13 डेज टू एक्सपायरी, और 9 डेज टू एक्सपायरी में हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, जब 13 डेज टू एक्सपायरी था, तब भी ये 15,300 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 था। ठीक है ना? बट हुआ ये कि जैसे जैसे ये ऑप्शन आपका मतलब इन द मनी होता गया, क्योंकि जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा होगा, दिस ऑप्शन वुड हैव बिकम इन द मनी, और जैसे जैसे इन द मनी हो रहा है, वैसे वैसे जो है ना, ये ऑप्शन आपका डेल्टा भी इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे वैसे इस ऑप्शन का डेल्टा आपका 0.5, 0.6, 0.7 तक आ गया। सो 9 डेज टू एक्सपायरी में एक इन द मनी ऑप्शन, मतलब आपका अगर 15,600 चला गया, 15,300 का कॉल, मतलब कितने पॉइंट? 300 पॉइंट इन द मनी हो गए। तो इस सिचुएशन में आपका जो इस ऑप्शन का डेल्टा रहा होगा वो 0.7, मतलब आपने 0.5 से तो स्टार्ट किया था, बट 0.7 पे आप चले गए इसी ऑप्शन के डेल्टा के साथ। करेक्ट। तो डेल्टा के एंगल से अगर हमको प्राइसिंग निकालनी हो, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि बाजार अगर 300 पॉइंट बढ़े, है ना, सो मान लीजिए कि मेरा अगर व्यू ये रहता कि बाजार अगले 3-4 दिन में, बाजार अगले 3-4 दिन में 17 तारीख को अगर मैं ये सोचता कि बाजार 15,300 से 15,600 हो जाएगा, तो सवाल ये है कि मैं कौन सा ऑप्शन खरीदता और क्या कैसे करके मैं प्राइसिंग इसको कर पाता। करेक्ट। यूजिंग ऑल दिस ग्रीक्स वेरी क्विकली। सो देखिए, 15,300 चल रहा है, 15,300 का हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका डेल्टा 0.5 ले लो। अच्छा, 15,300 से अगर बाजार 15,600 चला गया, तो इसका डेल्टा भी बढ़ेगा। करेक्ट। क्योंकि इन द मनी जैसे जैसे होगा, ये डेल्टा हमने दिखाया कि ये बढ़ते जाता है टुवर्ड्स 1। अच्छा, तो 4 दिन में 15,300 पॉइंट अगर बढ़ जाए, तो इसका डेल्टा लेट से 0.5 से 0.7 हो जाएगा। मतलब ये एवरेज में हम पकड़ सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा है, ये 0.5 से बढ़ के ये 0.6 पे आ गया। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि बाजार अगर 310 पॉइंट बढ़े, तो मेरा ये ऑप्शन कितना बढ़ेगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 310 पॉइंट, तो आ गए 186 पॉइंट। तो आपने जो है ना 300 पॉइंट, अगर आपके हिसाब से बाजार यहां से अगर एक्चुअली इतना बढ़ता है, अगर आपको मालूम था, या आपका व्यू ये था कि 4 दिन में ये होने वाला है, सो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू वुड हैव गेन्ड 186 पॉइंट्स। अच्छा, थीटा, थीटा हमने देखा कि यहाँ पे देखिए टाइम टू जो है ना, मतलब ये 10 दिन करके ये वाला हम देख रहे हैं, 13 दिन में ये देखिए एट द मनी ऑप्शन, इसमें लगभग थीटा जो है ना आपका वही 10-12 रुपए ऐसे ही रहता है डेली का। मतलब एक दिन अगर आपका एक्सपायरी में कम हुआ, तो आप मान के चल सकते हैं कि 10 रुपए 12 रुपए ऐसे कम होगा, अगर आप 10-15 दिन दूर हैं एक्सपायरी से। अगर आप एक्सपायरी के पास आ रहे हैं तो और ज्यादा होता है ऑब्वियसली, 20 रुपए 25 रुपए भी हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक एवरेज नंबर मान लेते हैं कि 10 रुपए पर डे। तो 4 दिन के हमारे कितने हो गए? 40 रुपए हो गए ना। तो 4 दिन, ये 4 दिन कम हुए, 10 रुपए करके हर दिन मेरा जा रहा है, तो 40 रुपए मेरे कम हो गए। तो डेल्टा में एक तरफ कमाया और थीटा में मैंने एक तरफ गवाया। अब वीगा, वीगा में मार्जिनल चेंज हुआ, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ा सा गिरा, तो उसके लिए भी हम मान लेते हैं कि कुछ 1% वॉलेटिलिटी में अगर चेंज हो, तो 10-12 रुपए हमारे गिर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनल गिरा, तो 5-6 रुपए मैंने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पकड़ लिए। तो अभी जो है इसका इसका मतलब नेट क्या आएगा? नेट आएगा ये सारे का समेशन, मतलब 186 माइनस 40 एंड माइनस 6, सो विच गिव्स मी अ रफ एस्टिमेट ऑफ 140 पॉइंट। मतलब 140 पॉइंट का मेरा गेन होना चाहिए। करेक्ट। और फिर क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा 417 प्लस 140, I mean 140 plus 277, correct? So which gives me a rough estimate of the option price at 500 417, और एक्चुअल में मार्केट अगर आप देखें तो उस दिन 419 पे बंद हुआ था। ठीक है।
अच्छा, वहीं पे अगर हम 15,600 का कॉल ऑप्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, तो 17 तारीख को जो है ना ये कॉल ऑप्शन आपका एवरीथिंग रिमेन सेम, ये कॉल ऑप्शन आपका ट्रेड हो रहा था 130 रुपए, अभी 15,600 है, मतलब हम 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू द डेल्टा शीट, सो 13 डेज टू एक्सपायरी एंड मार्केट इज एट 15,300 एंड आई एम लुकिंग एट दिस ऑप्शन 15,600 है ना कॉल ऑप्शन। तो देखिए, सॉरी इसका वॉल हमको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज 23% हम एक ले लेते हैं नंबर। अच्छा, अभी वापस से आई एम जस्ट रनिंग इट क्विकली 15,300। सो ये देखिए डेल्टा आपका जनरेट हो गया। सो देखिए 15,600 का कॉल ऑप्शन बराबर, तो 15,600 का कॉल ऑप्शन आपका डेल्टा बता रहा है 0.34। सो 13 डेज टू एक्सपायरी which is what it was on 17th of June, 30th June के expiry का। So this is what I am looking at. So the delta was 0.34 and as I said like जैसे जैसे करके ये मार्केट ऊपर जाएगा इसका डेल्टा भी बढ़ेगा। तो 15,300 से अगर मार्केट 15,600 हो गया और आप 15,600 का ही कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हो जाएगा, मतलब एट द मनी हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर एट द मनी हो जाता है तो इसका डेल्टा आप 0.35 से चालू किए और एट द मनी में हमको मालूम है कि इसका डेल्टा कितना होगा 0.5 बराबर। सो 0.35 से 0.5, तो एक रफली अगर हम सोचे तो हम एक ये सोच सकते हैं कि इसका हम रफ एक 0.43 या 0.42 का एक एवरेज डेल्टा हम मान के चल सकते हैं वेरी क्विकली। सो थीटा वापस से 4 दिन कोई फर्क नहीं है, तो थीटा में भी वही 10 रुपए करके पर डे, तो 40 रुपए गए मेरे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपका बाजार वापस से 300 पॉइंट बढ़ता है 310 पॉइंट, तो यहाँ पे माई डेल्टा गेन और एक्सपेक्टेड गेन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्पॉट इज 130 रुपीज, whereas I am going to lose 40 and 11 in terms of theta and vega. So net I am more or less expected to make 80 rupees, which is mentioned here as 79 to be precise. So लगभग 80 रुपए का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। So my price from 130 should go up to कितना 210 209, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके ये एक्सपेक्टेड आरओआई भी हम निकाल सकते हैं। ये वाला अगर ऑप्शन मैंने लिया होता तो इसमें 50% 51% का आरओआई था, बट इसमें जो है ना 61% है। तो अपरेंटली दिस ऑप्शन लुक्स बेटर यू नो इन हाइंडसाइट। ये वाला ऑप्शन 15,600 का कॉल कंपेयर टू 15,300 लुक्स बेटर, राइट। अभी इसमें खाली एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब आप 15,600 का ऑप्शन ले रहे हैं तो इसमें आपका एक ही चीज है कि यू हैव टू बी राइट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस लेवल दैट यू प्रेडिक्ट प्लस द टाइम दैट यू प्रेडिक्ट। क्योंकि ऑप्शन में अगर आपने 2 दिन से अगर आप डिलेड हो जाते हैं या 3 दिन से अगर हो जाते हैं तो आपका सीरीज ही खत्म हो जाता है एंड दिस ऑप्शन वुड हैव स्टिल एक्सपायर्ड एट 15,600 बट देन यू वुड हैव लॉस्ट मनी, है ना। सो आपने लेवल तो ठीक निकाल लिया 15,600 होगा, लेकिन अगर वो 4 दिन के बदले अगर 6 दिन ले लेता देन योर एक्सपायरी वुड हैव कम एंड देयर वुड हैव बीन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थीटा डीके एंड दैट वुड हैव टेकन ऑल योर प्रॉफिट्स अवे, करेक्ट। सो as I mentioned that out of the money options are good in when you are pretty much sure what is the price level that you are predicting and when that is expected to happen, ठीक है। But let's say if I'm an intraday trader, okay, then what do I do? So intraday trader, देखिए इंट्राडे में आपका स्पॉट में कितना मूवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा तो मूवमेंट नहीं होगा। It is not every day that we see a 300 point or 500 point or even 200 point move, right? So intraday में आप उतना पॉइंट के लिए जनरली मूव ट्रेड भी नहीं करेंगे। Maybe you are only looking at a 50 point move on the spot, correct? So in that case, if I am trading an option which has a very low delta, let's say if I am picking an out of the money option, ठीक है, whatever be the time to expiry, even if it is 1 day to expiry or maybe 10 days to expiry, my delta for out of the money options is always going to be on the lower side, correct? If market is at 15,300 and if I'm picking an call option of 15,600 and let's say if there are only 5 days to expiry, this will have a delta of only 0.2 or maybe 0.25. So if market goes up by 10 points, I'm only making 2 rupees, correct? And if even if it went up by 50 points, then also this option will only go up by how much? Not much, only 10 rupees. I mean 10 rupees, 10, 12 rupees, that's it, correct? But
दैट्स नॉट गोइंग टू कवर माई कॉस्ट ऑल्सो. 10 पॉइंट की मूवमेंट में शायद उस ऑप्शन में मतलब जो है ना कॉस्टिंग और स्लिपेज, ये काफी सारी चीजें मिला के कुछ निकलेगा नहीं. बट इंस्टेड अगर मैंने इंट्राडे के हिसाब से 50 पॉइंट में अगर मेरे को निकल जाना है, मतलब 50 पॉइंट निफ्टी में मूवमेंट आए, तो अगर उसके बदले में इफ आई एम ट्रेडिंग एन एटीएम ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, बिकॉज माई एटीएम ऑप्शन हैज अ डेल्टा ऑफ 0.5. So if I am choosing an ATM option, so that is in intraday going to give me a bit more quick in and quick out opportunity, right? So uh, can we have the slides back again? Let's just, yeah. So great. So we understood about the dynamics of options, and probably this is it for the day. And now I would like to have your question answers. It was wonderful to get the opportunity to interact with you. So now, yes, we have the round of question answers. Okay, so I am already getting the answers. IV is 21%. Mr. Chetan, he said that the IV was 21%. Well, let others guess. I'm not going to say yes or a no. So, right. Okay. And, okay, how can we make such calculations? See, these Greeks are not something which I invented. Well, ये सब आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? So, जनरली आप एक बॉलपर्क नंबर के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हैं कि एक एटीएम ऑप्शन है, चाहे कॉल हो या पुट हो, उसका डेल्टा विल बी 0.5. दैट्स नंबर वन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टू एक्सपायर. सेकंड, अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो let's say you're operating with 10 to 15 days to expiry. So out of the money options, what will be the delta? Under normal circumstances, it will be something around 0.2, 0.25, 0.3 at maximum, correct? And if it is an in the money option, let's say by about 200-300 पॉइंट, जैसे निफ्टी के केस में मैं दिखा रहा था, so that will be automatically around 0.7, around 0.7, 0.8 भी हो सकता है थोड़ा, अगर आप अंदर चले गए, करेक्ट, वॉलेटिलिटी लो हो गई तो. So that's what it is. And being aware of these numbers is important, because when you talk about strategies, when in the next classes which we are going to discuss, when you are trying to build upon strategies using different combinations of options, like a bull call spread, or maybe a covered call, or maybe like a butterfly or something like that. So in that case, we have to understand what is the net delta that I'm carrying. How much risk do I have if market goes up by 50 points or market goes down by 500 points? How much am I going to lose in terms of theta? How much am I going to lose in terms of volatility? What's the volatility मतलब कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो जब आप ये ग्रीस को थोड़ा बहुत समझेंगे ना, तो आपको ये मालूम रहेगा कि आपके टोटल पोजीशन में क्या इम्पैक्ट आ सकता है. That is the basic idea of these sessions. Of course, in the next subsequent sessions, we are going to be talking about more in terms of the strategies individually, and then of course we will be dissecting the Greeks again totally. Okay, so I think we are running out of time. We have pretty much overshot, and hope this was enjoyable. So this is it for from my side. I'm so sorry that I was not able to answer all your questions, but I'll try to respond back. We have all these things. Can we share the Excel file? Yes, I'll see a way to share this Excel file with you. But thanks again, and this is it for the day. Signing off. Thank you. Have a good day.